بسم الله الرحمن الرحيم. سرانجام سن 61 ہجری قمری میں عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور ایک غیر برابر جنگ میں امام مظلوم اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔
سنت و طریقت کے ماننے والوں، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا۔ خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا امیر المومنین یزید کا حافظ ہے۔ اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہ قادر متعال کا ارادہ ہے کہ جو سخاوت اور رحمت کا دریا ہے، بہت سے گناہوں اور خطاکاروں کو بخش دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سو کو معاف نہیں کرتا۔ بالکل اس خارجی ہنگامہ آرائی کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا مزہ چکھائے۔ اور کاش خداوند جھوٹ بولنے والوں کو تمہارے منہ میں خاک ہوئے برجانہ کے بیٹے، تم حسین کو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، جھوٹے تم ہو اور تمہارا فاسق اور جاہل خلیفہ کہ طاقت کی پیاس سے تم لوگوں کو اندھا کر دیا، اور تم لوگوں نے اپنے ہاتھ خدا کی مخلوق کے سچے ترین بندے کے خون سے آلودہ کر دیے۔ واہ ہو تم پر کہ تم نے فرزند رسول کے کٹے ہوئے سر پر اور ان کے نازنین لبوں پر چوبے خیزرہ سے مارا۔ بن حریث، اس بوڑھے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلق خدا کے بدترین لوگ، میں نے زید ابن ارقم سے سنا ہے کہ اس ملعون نے اس کے لبوں پر چوبے خیزرہ ماری جن کو بارہا رسول خدا نے چوما ہے۔ خدا کی قسم وہ کام کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا حشر یاد رکھیں گے۔ اسما، اسما، گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا؟ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈرے ہوئے بابا؟ اسما میری بیٹی، کیا لکڑیاں جل رہی ہیں؟ جی بابا، میں نے پانی گرم کیا ہے آنکھ کا زخم دھونے کے لیے۔ اب ہمیں اپنی جان کا زخم دھونا ہے بابا کی جان۔ ان زخموں کو بھول جاؤ، میرا کفن لے آؤ، مجھے موت کا غسل کرنا ہے۔ میرا دل منہ کو آ رہا ہے بابا، کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمن، تم ہی سے کچھ بتاؤ۔ وقت کم ہے،
کچھ ضروری سامان اٹھا لو اسما، ہمیں دیر کیے بغیر کوفے سے جانا ہوگا۔ کوفے سے چلے جائیں؟ مگر کہاں؟ مکے، ہمیں کعبے کی پناہ میں جانا ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے ابن مرجانہ کو منبر پہ رسوا کر دیا، اس کے کتے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، جلدی کریں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم مجھے پتا تھا کہ یہ مسجد جائیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان چند دنوں میں اتنا حسین کے لیے روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ خدایا تو ہی ہماری فریاد سن لے۔ عبد الرحمن، تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ یہیں رہیں گے؟ فوجی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹکڑے ایک ایک کتے کے منہ میں ہوں؟ میں نہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں نہ بھاگنے والے پاؤں، آپ لوگوں کی گردن کا وبال بن جاؤں گا۔ میں موت کے دہانے کھڑا ہوں عبد الرحمن۔ اس سے پہلے کہ ہم گھر کا دروازہ توڑ دیں اسے کھول دو۔ بھاگ جاؤ عبد الرحمن، بھاگ جاؤ۔ تمہیں میری بیٹی اسما کی قسم ہے، اس قوم کے دل میں رحم نہیں ہے۔ فرزند رسول کی گھرانے کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ صرف میری تلوار مجھے دے دو، میری تلوار دے دو۔ بابا یہ لیجیے تلوار۔ اتنی باتیں کی آپ نے کہ وہ لوگ آ گئے۔ جلدی کرو، چھت سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میں انہیں مصروف رکھوں۔ دروازہ توڑ دو۔ بھاگ جاؤ عبد الرحمن۔ اپنی دیانت کا کیا کروں؟ اپنے غرور اور غیرت کا کیا کروں؟ نہیں عبد الرحمن، بھاگ جاؤ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، عبد الرحمن، بن عفیف کو زندہ چاہتا ہوں۔ سامنے دیکھو بابا۔ مار دو۔ خدا کی قسم میں اندھا نہ ہوتا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دیتا۔ اسما، عبد الرحمن، اسما، بابا کی جان اگر قید ہو گئی تو بے قرار مت ہونا۔ رسول خدا کی نواسی زینب کبریٰ کو یاد کرو تاکہ سکون ملے۔ تمہارا داغ زینب کے داغ کے مقابلے میں بہت حقیر ہے بابا کی جان۔ آئے 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 آئے، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا زخم اتنا قدرت مند ہو سکتا ہے کہ میرا چین چھین لے۔ تلوار کا زخم بھی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا طبیب؟ یہ کیسی آفت ہے جس نے ہماری ران کو المناک کر دیا ہے؟ آہستہ آہستہ گویا مجھے فالج ہو رہا ہے۔ ویسے یہ اتنا پریشان کن نہیں ہونا چاہیے، ایک بھرا ہوا پھوڑا ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے۔ اگر اس کا مواد نکل آئے درد ختم ہو جائے گا۔ کوئی نوک چبھ ہو تو تاکہ ہمیں سکون مل جائے طبیب۔ 1-2 دن رک جائیے تاکہ خوب پک جائے۔ ابھی تک اس کا پانی صحیح طرح بھرا نہیں ہے، سخت ہے۔ کسی چیز سے اسے نرم نہیں کر سکتے؟ بہتر رہے گا اسے بھی نہ چھیڑے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسے ابھی چھیڑ دیا تو کچھ مادہ اندر خون میں نہ رہ جائے۔ اگر خود ہی پک جائے تو آپ کے خون کو پاک کر دے گا۔ یہ پھوڑا نہیں ہے، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے طبیب۔ یہ زخم اس خون کے قطرے سے ہے جو امیر کے پاؤں پر ٹپکا۔ دماغ خراب ہے تمہارا ماقل، کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں فضول کی باتیں کر رہا ہوں۔
یہ زخم ایک ایسا طلسم ہے جو ورد اور دعا سے ختم ہوگا، نہ کہ دواؤں سے۔ معاملہ کیا ہے ماقل؟ اس کی باتیں مت سنو طبیب، اس کا دماغ خراب ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ 1-2 دن اس کے درد کو برداشت کیجیے، برداشت نہ ہو سکے تو تھوڑی سی شراب پی لیجیے تاکہ آرام سے سو جائیں۔ اجازت ہے یا امیر؟ ہاں بن حرس، اب کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں، بن عفیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت محل میں موجود ہے۔ بن عفیف کون سا گدھا ہے؟ وہی اندھا بھوڑا ہے جس نے مسجد میں گستاخی کی، اس کا گھر جل گیا۔ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر سپاہیوں پر حملہ کر رہی تھی، مجبوراً اسے مار دیا گیا۔ فی الحال اسے قید کر لو جب تک میرے پیر کا درد ختم نہ ہو جائے۔ جی امیر۔ بن حرس، جی امیر۔ اگر جیل میں شور کرے اور قیدیوں میں ہنگامہ برپا کرے تو اسے مار مت دینا، اس خرمہ فروش کی طرح نہ ہو جائے کہ اسے دار پر چڑھا دیا پھر مجھے بتایا۔ تم لوگوں کی نادانی باعث ہوئی کہ علی کی پیشن گوئی میسم تمار کے حوالے سے ٹھیک ثابت ہو جائے، اور یہ خرافاتی لوگ پہلے سے زیادہ علی کے معجزات پر ایمان لے آئے۔ قربان جاؤں، جب میسم تمار نے قیدیوں میں ہنگامہ آرائی کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے اور کھجور کے درخت پر سولی پہ لٹکا دیا جائے، آپ کو یاد نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے حکم دیا تھا کیونکہ حسین کا مسئلہ باعث بنا کہ ہم میسم تمار کے دعوے کو بھول جائیں۔ آپ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے، چاہیے تھا کہ ہمیں یاد دلاتے۔ جاؤ، اب دھیان رکھنا کہ تم اس کے بعد غلطی نہ کرو۔ جی امیر۔ چلاؤ چلاؤ، رک جاؤ۔ تمہارا مہمان ہے یہ مختار؟ مختار؟ اچھا ہم نشین ہے، تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اب صبح تک بیٹھو اور لمبے چوڑے قصے کہانیاں سناؤ اور سناتے رہو، میں تو چلا۔ یعنی بن حفیظ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک شعر دلاور کا ہم نشیں ہو سکے؟ مختار، مختار، کہاں ہو دلاور؟ کہاں ہو دلاور؟ ابو اسحاق، میں ہوں بن عفیف، تمہارا صفین کا ساتھی۔ تمہیں یاد ہے علی کی راہ میں ہم نے موت سے کیا کیا لڑائیاں کی ہیں؟ میں نے تمہاری آنکھ کے زخم کے بارے میں سنا ہے، میں نے علی کی راہ میں آنکھ دے دی اور تم نے ان کے فرزند مولا حسین کے لیے۔ خدا ہم دونوں سے قبول فرمائے۔ تمہاری آنکھ کے زخم سے تو پس نکل رہا ہے دلاور۔ تم یہاں کیوں ہو بن عفیف؟ میں کوڑے کھانے اور کھال اتروانے آیا ہوں تاکہ داغ حسین کو برداشت کر سکوں۔ میری اندھی آنکھیں میرے کانوں کا حجاب بن گئی اور میں حسین کی حال میں ناصر کی آواز کو نہ سن سکا۔ جب میں نے سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو اسیری پر لے گئے، خدایا مجھے اندھا ہی معشور کرنا تاکہ تیرے رسول کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدایا صفین میں
जब मेरी आंखों पर जख्म लगा, मेरे मौला अली ने जख्म पर हाथ रखकर मेरे देखने की कुव्वत मेरे कानों को बख्श दी, ताकि मैं अंधा न रहूं। तो फिर मैं अंधा क्यों रहा और करबला न पहुंच सका? तेरी बहिश्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मेरा हाथ तुम्हारा तलवार के कब्जे पर पहुंच जाए। उसके बाद अगर तूने चाहा कि मुझे दोज़ख में भेज दे तो भेज देना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो। न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं। अल्लाह ना करे, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं जारिया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी? उस रोटी और नमक की हुर्मत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, वो लोग उसे अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे, ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊं। तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है। कौन था जारिया? क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी किया ज़िलजोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं। उमर को तुमसे बात करनी है, रुको उससे बात करो। शायद उस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था मगर उसने किसी को नहीं मारा। मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था। इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूं। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खूने हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खूने हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियां उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है। मुख्तार अंधा हो जाए, ये उसे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं। चली जा, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कुफियों पर तमाम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो, ठीक है। मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चला जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार?
मीसम तम्मार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तम्मार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं अपने मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तम्मार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई। इश्क के राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है। अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। ला यकमल ईमान अल-अब्द हत्ता यज़ुन्नून अन्नास अन्नहु मजनून। जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा, क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है। इब्ने अफीफ हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? इश्क अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? मीसम तो निशानियां बताना चाहता था तुझे बिन अफीफ। तुम खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ। खुद को संभालो बिन अफीफ, खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो। मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाब मुस्लिम की मौत की खबर सुनी,
जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्न मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ऐ दोज़ख में रहने वालों? डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूँ। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए। क्या सआदत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी काल कोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्दे बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्दे बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। जेल के ताले को हाथ मत लगाना। कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है। दर्रे खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था।
ورنہ مولا علی ہماری طرح ہی کے انسان تھے. یہ خدا کا عشق تھا کہ جس نے مولا کے بازوؤں کو خدا کی بے انتہا طاقت سے بھر دیا کہ ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا. اپنے بازوؤں کو عشق و ایمان سے بھر دو، پھر دیکھو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں یہ. یا منصور! چلو جلدی چلو. بالآخر وہ کام کیا تم نے کہ تمہیں بھی میری طرح زندہ دفنا دیا گیا اس قبر میں. قبر کہاں اور یہ جہنم کہاں ابو اسحاق؟ فشار قبر اور اس کی وحشت سے خدا کی پناہ. راہ کوچہ یار بہت پیچ و خم والی ہے. یہ قید اس راہ کا آغاز ہے. دعا کرو کہ اس راہ کے ان پیچ و خم اور فریب اور ہیلوں میں گم نہ ہو جائیں. گم نہیں ہوں گے. آسمان پر کوئی ستارہ نظر آ جائے گا رہنمائی کے لیے. اگر آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر؟ اگر ہم چل رہے ہوں اور راستے میں کنواں آ جائے. بہت سوں کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، وہ کنویں میں گر گئے. ایسے میں کیسی خاک اپنے سر پر اڑائیں؟ گھبراؤ مت میسم. راستہ دشوار بھی ہے اور پیچ و خم والی بھی، مگر ہم بھی راستہ نہ جاننے والے نہیں ہیں. حب علی ہماری راہ کا نشان ہے. میں دیوانہ ہوں مختار.
बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया तभी। ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मोम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं। ताज्जुब है कि जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो। इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजुलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ।
मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए। इन्हें दर्द ने बड़ा बेताब कर दिया है। खुराफात बक रहे हैं। माफी चाहता हूँ सरकार। मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज़ औक़ात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो ज़ाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती है। तबीब, एक दिन हमारे पास कटा हुआ सर लाया गया। उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो। ये खिलाफे अक्ल है सरकार। ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर से कतरा आपकी रान पर गिरा, मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई। इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो। इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूं कि ये जख्म नजर बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है। पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं, उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद को तिलिस्म हो जो सहर और जादू से ठीक हो सके। तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब? तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए, हर बीमारी ठीक की जा सकती है। पता लगाओ, वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिला आखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सरायत कर जाए और उसे गला दे। किसी ने आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं। आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं। मार देगा, कुछ देर नहीं कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है। खुदा आपके बुजुर्गों की मगफिरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुख्तार के चचा साथ भाई हो ज़ायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को? नहीं हो सकता बानो। आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए। कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचा साथ भाई बन गए। जनाब ज़ायदा इब्ने कुद्दामा, तुम मेरे काबिल एतमाद लोगों में से एक हो। तुम्हारा मामला मुख्तार से बिल्कुल अलग है। मैंने चाहा कि तुम अपना फर्ज समझकर हमारी और खलीफा की हुकूमत की एक मदद करो।
जो कि हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मुख्तार हमारा कैदी है, मगर तुम और मैं, हम सब ये जानते हैं कि मुख्तार का जिंदा रहना एक संजीदा और छुपा हुआ खतरा है खलीफा की हुकूमत के लिए। मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौम बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफ़ी असर व नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर व नफूज को ख़त्म कर दो। कबीला सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रहिए अमीर। सक़फ़ियों की ना तो कूफे में कोई ख़ास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाज़ात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज़्यादातर अपनी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ़ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अक़ीदों से कोई सरोकार नहीं। मुख्तार की दोस्ती ज़्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज़ हैं, इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आज़ाद किए हुए हैं, अरब के ग़ुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है। मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है? अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में 1-2 महीने के। ठीक है, मगर इन सब के बावजूद हमें मुख्तार के नफूज और उसके ना दिखने वाले लश्कर से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जब तक मुख्तार जिंदा है, ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह हैं। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मैं अमीर के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बेशक आप हुकूमती आफतों और खतरों को दफा करने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। जो भी मसलहत है वो कीजिए। मुख्तार आपके पंजे की गिरफ्त में है, आप उसके वजूद को मिटा सकते हैं। तुम ये जहमत उठाओ, ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब क्या करूं अमीर? मुख्तार को मार दो। जी मैं उसे मार दूं? अपने चचाजाद भाई को? खलीफा की बका और दवाम के लिए कर रहे हो बंदे खुदा। तुम्हारा अजर व सवाब अपनी जगह, हमारे रहम करम से भी खाली हाथ नहीं रहोगे। इमारत से लेकर सोने तक जो भी चाहो। मैं ही क्यों अमीर? यही काफी होगा कि एक सिपाही को चंद दिनार की लालच में खरीद लीजिए कि वो मुख्तार को मार दे। मुख्तार का मेरे हाथों मारा जाना वो शर्मिंदगी है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डसती रहेगी। कोई भी नहीं समझेगा कि मुख्तार को तुमने मारा है। ये एक राज है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अपने चचाजाद भाई मुख्तार को देखने के बहाने जिंदान में जाओगे। कैदियों की आंखों से बचते हुए एक मरहम अपने साथ ले जाओगे। जैसे ही मरहम को मुख्तार की आंख के जख्म पर लगाओगे, तमाम किस्सा खत्म हो जाएगा। मरहम एक जानलेवा जहर से भरा हुआ होगा, वो खुद ही मुख्तार की जान ले लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे अलावा कोई और ना कर सके। और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा शख्स होता तो मैं तुम्हारा दामन नहीं पकड़ता। मुख्तार हर चीज और हर शख्स पर शक करता है। हमने जो कुछ भी दवा और इलाज के लिए भिजवाया उसने मना कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने बिनु हुरैस से वादा किया है। बिनु हुरैस एक काम का आदमी है, उसने बहुत सी खिदमतें की हैं और कर रहा है। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं उससे ये काम नहीं करवा सकता। अब रह गए मुख्तार के करीबी लोगों में से कोई एक। अब तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जो दोनों ग्रोहों के लिए काबिल एतमाद हो। शक मत करो जायदा, अभी हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो हम एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं।